is the plastic shrinkage. Good afternoon, friends. We will be moving on to the next type of shrinkage, that is the drying shrinkage. It is as similar, or it is the process or mechanism which is very similar to the drying of the any wooden piece or drying of the timber specimen. Timber means wood, WOOD, wood. So when the wooden piece or wooden specimen dries, then that wood also shrinks. So in the same way, the concrete dries, and during this drying process, the concrete shrinks, as like the wood or the timber shrinks. Both these mechanisms are the same. Such shrinkage is called as the drying shrinkage. Now, what is the cause of the drying shrinkage? Again, loss of water. All the shrinkages causes, the cause of all shrinkage is the loss of water. Now, here the water is lost from the gel pores. We have seen earlier that 38% of the water is required for the hydration process. That is the hydration of the cement and water. 38% water. Out of this 38% water, 25% water is actually required for the initial chemical reaction between the cement and the water, called as the bound water. And the remaining 13% of the water is again required. It is stored into the gel pores or the gel, very tiny micro voids, you can say. They are not actually voids, pores. Pores, there is a difference between pores and the voids. So small, very tiny micro pores are there. In those pores, some water is stored, as like the water stored in the coconut. And the cement paste hardens, sets. And this water which is stored into the pores is trapped. It cannot easily come out through those pores unless and until it is forced to come out, either by way of using it progressively over a longer period for the unhydrated cement powder, because 100% of the cement does not get converted into CSH gel. Some part remains, maybe a very micro part, maybe a very small part, and that part slowly needs water for the hydration process. So this is the one part of the water which is being lost through the gel pores, and therefore this water is used for the cement hydration process. So there is nothing else which will take place of this used water into the hydration of the cement. So therefore what will happen? The ingredients of the concrete other than water, that is the aggregates, will be sucked due to the negative pressure formed into the gel pores, and naturally the very small particles of all this cement paste as well as the aggregates will slightly adjust themselves to occupy the gel pore space, which is vacuum now. And during this adjustment, the reduction in the volume of the concrete takes place, and it is called as the drying shrinkage.
And generally it is observed that this drying shrinkage takes place for the maximum extent when the concrete is in the dry condition. मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया है कि ये ड्राइंग श्रिंकेज यानी क्या है ना। कोई भी श्रिंकेज है वो पानी जब लॉस होता है कंक्रीट में का तो उसके कारण श्रिंकेज होता है। हमने देखा है कि सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस है उसके लिए हमें 38% बाय वेट ऑफ द सीमेंट के वजन का 38% पानी ये हाइड्रेशन के केमिकल रिएक्शन को लगता है। उसमें से 25% पानी एक्चुअली इनिशियल केमिकल रिएक्शन के लिए लगता है और 13% जो पानी है वो सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट है, ये पेस्ट जो धीरे धीरे सेट होते जाता है, हार्ड होते जाता है, तो उसमें बहुत माइक्रो टाइनी पोर्स रहते हैं, छेद रहते हैं, बहुत माइक्रो, छेद भी नहीं बोलेंगे अपन, बहुत माइक्रो पोर्स रहते हैं। तो उसमें ये पानी ट्रैप हो जाता है और ये पानी धीरे धीरे इनिशियली शुरू में बहुत ज्यादा, शुरू का जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सीमेंट है उसमें तो ये 25% जो पानी यूज हो जाता है, लेकिन ये बचा हुआ 13% पानी जो रिमेनिंग सीमेंट है, जो बचा हुआ सीमेंट है, जो हाइड्रेट होने का है, उसमें धीरे धीरे ये हाइड्रेशन के लिए यूज होता है। नरियल में जैसा पानी रहता है वैसा ये जेल पोर में पानी रहता है। तो ये पानी जैसा वापर में आता है, यूज में आता है हाइड्रेशन में, इसकी जगह लेने के लिए दूसरा कुछ नहीं रहता, तो नेचुरली ये पानी निकल जाता है, तो अंदर में निगेटिव प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट हो जाती है और वो वैक्यूम होने के कारण सक्शन प्रेशर एक्ट होता है और वो जगह लेने के लिए कंक्रीट के जो बाकी मेंबर है जैसे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट, वाटर हार्डन्ड, बिट हार्डन्ड जेल, ये सरकते रहते हैं, आजू खुद को अंदर खींचते हैं और ये थोड़ी सी माइक्रो मूवमेंट के कारण थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, जिसको हम ड्राइंग श्रिंकेज बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जेल वाटर, कुछ परसेंटेज जेल वाटर इज लॉस्ट। और ये प्रोसेस जो होती है ये जनरली कंक्रीट जब ड्राई कंडीशन में रखा जाता है, यानी जब कंक्रीट किसी पानी के कांटेक्ट में नहीं आता, व्हेन द कंक्रीट डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, मींस इफ द कंक्रीट इज ऑफ द reservoir or the dam or concrete is of the pier of the bridges in the river, then those concrete will come in contact with the water, वो concrete पानी के contact में आएगा। लेकिन एक आधा concrete रहता है कि जो पानी के contact में नहीं आता, जो हरदम सूखा रहता है, ड्राई रहता है, तो ऐसे इसमें ये ड्राइंग श्रिंकेज और ज्यादा होता है। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो ड्राइंग श्रिंकेज है, ये जो श्रिंकेज है, ये श्रिंकेज कुछ रिवर्सिबल भी है, यानी श्रिंक होने के बाद में यदि ये कंक्रीट पानी के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि श्रिंक क्यों होता है, ये श्रिंकेज होता है क्योंकि जेल वाटर कुछ यूज हो जाता है, जेल पोर वाटर, और वो जेल पोर वाटर की जगह खाली हो जाती है, इसलिए कंक्रीट श्रिंक होता है, जेल पोर की जगह लेने को जाता है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट। लेकिन यदि ये कंक्रीट, इफ दिस कंक्रीट कम्स इन कांटेक्ट अगेन विद द वाटर, यानी जैसे रेनी सीजन में है, बरसात आई है और फिर गीला हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि some part of this concrete absorbs the water from the atmosphere, or if that concrete comes in contact with the water and again some space in the gel pores is being occupied by the water and this concrete swells, ये concrete थोड़ा सा फूलता है, लेकिन ये बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, बहुत माइक्रो एक्सपेंशन होता है। तो इसलिए ये ड्राइंग श्रिंकेज जो है, ये ड्राइंग श्रिंकेज 100% रिवर्सिबल नहीं है,
यानी 100% ड्राई होने के बाद में वो फूलेगा ऐसा नहीं है. About 40 to 60% of the drying shrinkage is permanently shrinked. Only remaining 20-30% of the shrinkage may be reversible if that concrete comes in contact with the relative humidity, or if that concrete is placed in water, or if that concrete comes in contact with the water. It will swell due to absorption of water by the cement paste. This may occur. As I have told you, not all the initial drying shrinkage is recovered even after prolonged storage in water. 100% of the shrinkage that has taken place will not again re-swell. 40 to 70% of the, about 70 to 40% of what that has been shrinked cannot be reversed, cannot be swelled. Some part 30-40%, 30-40% तक के ये फिर से स्वेल हो सकता है. ये हमें ड्राइंग श्रिंकेज के बारे में ख्याल में रखना है. लेकिन अभी हम कार्बोनेशन श्रिंकेज बाद में पढ़ने वाले हैं. क्या है भाई कार्बोनेशन श्रिंकेज, पढ़ेंगे, हम समझ लेंगे. लेकिन यदि कार्बोनेशन सीमेंट पेस्ट का हो गया, कार्बोनेशन क्या है बता ही देता हूं मैं अभी. when the calcium hydroxide in the cement paste, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है आपको मालूम है. कैल्शियम ऑक्साइड comes in contact with the water or reacts with water to form the CaOH twice. When this CaOH twice comes in contact with the carbon dioxide in the atmosphere, or when the carbon dioxide in the atmosphere comes in contact with the water, either on the concrete or in the concrete, then the carbonic acid H2CO3 is formed, and this H2CO3 reacts with calcium oxide or the calcium hydroxide, and CaCO3 is formed, calcium carbonate. And this formation results in the shrinkage of the concrete. लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट जब फॉर्म होता है, या कार्बोनेशन जिसको बोलते हैं, ये जब सीमेंट पेस्ट की हो जाती है तो फिर इसकी परमिएबिलिटी कम हो जाती है कंक्रीट की या सीमेंट की, या कंक्रीट इम्परमिएबल होता है. तो ये फिर से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और फिर से स्वेलिंग नहीं होती. सो देयरफॉर ड्यू टू द एक्सटेंसिव कार्बोनेशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट, then that cement paste is no longer capable of the moisture movement or absorption of the moisture, so that the residual or irreversible shrinkage is larger. यानी फिर जो श्रिंकेज एक बार हो गया है वो श्रिंकेज ज्यादा से ज्यादा रहेगा, रिवर्सेबल श्रिंकेज नहीं होगा, यानी फिर से स्वेलिंग नहीं होगा. ये कहने का मतलब है. The irreversible part of the shrinkage is associated with formation of additional physical and the chemical bond in cement gel when adsorbed water has been removed. कैसे होता है भाई ये? When the concrete dries, concrete जब सूखता है, either by the evaporation of water or by the hydration of the cement and the water. First of all, there is loss of free water. वाटर इन द कैपिलरीज, है ना. कंक्रीट में यदि वाटर सीमेंट रेशियो से ज्यादा पानी है, 38% से ज्यादा, यानी वाटर सीमेंट रेशियो 38% से 0.38 से ज्यादा है, तो जो ज्यादा का पानी रहता है कंक्रीट में या सीमेंट में वो कैपिलरीज में जमा रहता है, उसको कैपिलरी वाटर करके बोलते हैं. तो शुरू में क्या होता है कि ये जो कैपिलरी वाटर है ये ड्यू टू द टेम्परेचर of the atmosphere, this gets evaporated, this get lost. तो इसके कारण भी इंटरनल, इसके कारण क्या होता है कि फिर कंक्रीट के अंदर में तो पानी रहता है, बाहर का पानी इवेपोरेट हो जाता है, कैपिलरी वाटर जो है उसके कारण फिर अंदर का पानी एब्जॉर्ब करना चालू हो जाता है, खींचना चालू हो जाता है सरफेस के ऊपर में. उसको ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट करके बोलते हैं within the cement paste structure.
so that with time water molecules are transferred from the large surface area of the calcium silicate hydrates into the empty capillaries and then out of the concrete. And evaporation of the water from the capillaries as well as due to the hydration, the water is lost into the concrete, in short. Therefore the cement paste contracts. तो उसके कारण पानी, if the water is lost, then the cement paste or the concrete will contract, shrinkage हो जाएगा उसका, क्योंकि वो जो सक्शन है, सक्शन प्रेशर के कारण all the particles will come more and more closer together. But the reduction is volume is not equal to volume of the water removed. लेकिन ये जो वॉल्यूम का रिडक्शन है कंक्रीट का, ये जितना पानी निकल गया है बाहर उतना नहीं होता है, उससे कम होता है. Because the initial loss of the free water does not cause a significant volumetric concentration of the contraction of the paste. And also because of the internal restraint to consolidation by the calcium silicate hydrate structure. है ना, थोड़ा सा डिटेल में अपन समझ लेने का ट्राई कर रहे हैं कि ये रिडक्शन इन वॉल्यूम जो है कंक्रीट का या सीमेंट पेस्ट का, ये जितना पानी लॉस्ट हो गया ड्यू टू द इवेपोरेशन एंड द हाइड्रेशन, उससे कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि ये पार्टिकल जो है कंक्रीट के, अदर पार्टिकल, सीमेंट पाउडर है, एग्रीगेट है, इनमें भी ल्यूब्रिकेशन अभी कम होते जा रहा है. पानी जैसा ही फ्रिक्शन है तो वो उतने ज्यादा अंदर नहीं आते, सक्शन नहीं होता है. सीमेंट पे श्रिंक्स मोर देन द मॉर्टर एंड मॉर्टर श्रिंक्स मोर देन द कंक्रीट. सीमेंट पेस्ट, सीमेंट और वाटर की पेस्ट जो है वो सीमेंट, वाटर और सैंड, इससे ज्यादा ही श्रिंक होगी, क्योंकि बेसिक श्रिंकेज काय में है, सीमेंट पेस्ट में ही है, सीमेंट और वाटर में, उसमें ही तो केमिकल रिएक्शन होती है. और मॉर्टर में का पानी या कंक्रीट में का पानी क्यों कम हो रहा है? एक तो हाइड्रेशन के लिए या इवेपोरेशन के लिए, इवेपोरेशन के कारण. तो इसलिए सबसे ज्यादा श्रिंकेज सीमेंट पेस्ट का होगा, उससे थोड़ा ज्यादा सीमेंट पेस्ट और सैंड मॉर्टर का होगा, और उससे ज्यादा यानी सबसे कम जो श्रिंकेज है वो कंक्रीट में होगा. यानी सबसे ज्यादा श्रिंकेज सीमेंट पेस्ट में होगा, उससे थोड़ा सा कम मॉर्टर में होगा, और उससे और कम कंक्रीट में होगा. क्योंकि कंक्रीट में क्या है? गिट्टी है और रेती है जो श्रिंक नहीं होती. श्रिंक तो सिर्फ सीमेंट पेस्ट होती है. तो ये बाकी मेंबर श्रिंक नहीं होते, तो ये श्रिंकेज को अपोज करेंगे, तो कंक्रीट में कंपेयर टू सीमेंट पेस्ट श्रिंकेज कम होगा. Therefore, it has been found that the concrete made with smaller size aggregate shrinks more than concrete made with bigger size aggregate. ठीक है, 20 MSA का कंक्रीट है, 20 मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, तो फिर इसका श्रिंकेज जो है ये 40 MSA से ज्यादा होगा. या 10 MSA का एग्रीगेट है तो उसका कंक्रीट है तो उसका श्रिंकेज 20 MSA या 40 MSA से ज्यादा होगा. ऐसा भी देखा गया है. The magnitude of the drying shrinkage is also function of the fineness of the gel. Finer the gel यानी finer the cement, more is the shrinkage. क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. सीमेंट जितना बारीक, जितना फाइन, उतना केमिकल रिएक्शन ज्यादा, जितनी केमिकल रिएक्शन ज्यादा उतना हाइड्रेशन ज्यादा, जितना हाइड्रेशन ज्यादा उतना श्रिंकेज ज्यादा. Therefore, the high pressure steam cured concrete with low specific surface shrinks much less than the normally cured cement gel. तो इसके कारण यदि हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं, वेपर से क्यूरिंग करते हैं, तो उसमें श्रिंकेज कम होता है कंपेयर टू द कोल्ड वाटर क्यूरिंग. इट हैज बीन, इन शॉर्ट, हैज बीन concluded. Now the various factors affecting the shrinkage. The drying condition, or in other words the relative humidity of the atmosphere. श्रिंकेज को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है वो हम वन बाय वन देखते जा रहे हैं. पहला ये है कि वो कंक्रीट जो है, यानी कंक्रीट का मेंबर
भले ही एखादे डॅम की वॉल हो, एखादे स्लॅब हो, बिल्डिंग की बीम हो, या एखादे जैसे मेट्रो रेल का पियर हो या गर्डर हो, तो उसके आजू बाजू की जो ड्राइंग कंडीशन है, उसके आजू बाजू की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी करके बोलते हैं, कंपैरेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी ऑफ द कंक्रीट और वेटनेस ऑफ द कंक्रीट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर यदि ड्राई है, सूखा है, बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट विल बी मोर। अभी जैसा रेनी सीजन है, रेनी सीजन में बारिश भी आ रही है और आर्द्रता भी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फियर में बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि कंक्रीट का ड्राइंग कम होगा। कंक्रीट का ड्राइंग कम होगा तो श्रिंकेज कम होगा। तो श्रिंकेज काय के ऊपर डिपेंड है? श्रिंकेज इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फियर। और अभी हमने देखा कि जो ड्राइंग श्रिंकेज है, ये तो रिवर्सिबल भी है। यदि कंक्रीट यदि पानी के साथ में कांटेक्ट में आता है या गीला होता है, तो कुछ पार्ट ऑफ द श्रिंकेज कैन बी रिकवर्ड। वो कंक्रीट स्वेल होता है, फूलता है, बहुत नहीं फूलता, लेकिन जितना माइनर श्रिंकेज है उसके कुछ पार्ट इट कैन एक्सपांड। So therefore, the first factor which affects the shrinkage is drying condition or the relative humidity of the atmosphere at which the concrete is kept, or the concrete specimen यानी concrete का member, may be a concrete used in dam, reservoir, or the concrete of some slab, concrete of some bridge. Bridge may be a railway bridge or maybe bridge over the river और ओवर द सी। तो इस हिसाब से कंक्रीट सूखा रहेगा या कंक्रीट गीला भी रह सकता है, कहाँ बनाया है कंक्रीट उसके ऊपर। इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी कंक्रीट यदि हर वक्त ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के साथ में ही है, पानी बहुत ज्यादा है कंक्रीट के आजू बाजू, देयर विल नॉट बी एनी श्रिंकेज, इंस्टेड देयर विल बी स्लाइट स्वेलिंग। ये ऐसा देखा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मीन्स इफ द कंक्रीट इज परमानेंटली इन कांटेक्ट विद द वाटर, जैसे कि एखादा कंक्रीट का मेंबर समंदर में बनाया हुआ ब्रिज है, एखादे नदी पे बनाया हुआ धरण है, डैम है, रिजर्वायर है, या एखादे नदी के ऊपर का ब्रिज है, तो उसमें कंक्रीट मेंबर बहुत ज्यादा समय पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो उस समय वो कंक्रीट में श्रिंकेज इतना ज्यादा देखा नहीं गया है। लेकिन ऐसा देखा गया कि उसमें तो स्वेलिंग ही होता है ना, क्योंकि श्रिंकेज इज ड्यू टू द इवेपोरेशन और लॉस ऑफ वाटर, and if that concrete member is in contact with water, then there will not be any loss. On the contrary, concrete will get the water. The magnitude of the shrinkage increases with time along with the reduction of the relative humidity. ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जैसे कंक्रीट पुराना होते जाता है, ओल्ड होते जाता है, वैसे वैसे श्रिंकेज बढ़ते जाता है, और साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कंक्रीट जहां पे है उसके आजू बाजू में यदि ह्यूमिडिटी कम होती है या ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर भी कंक्रीट का श्रिंकेज डिपेंड्स करता है। श्रिंकेज टेक्स प्लेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड, बट पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म श्रिंकेज मे बी ड्यू टू कार्बोनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन द वर्ड कार्बोनेशन हैज कम, हम अभी बाद में पढ़ने ही वाले हैं कार्बोनेशन श्रिंकेज। कार्बोनेशन प्रोसेस क्या है मैंने थोड़े में समझा दिया है आपको। सो लॉन्ग टर्म श्रिंकेज जो है, लॉन्ग टर्म श्रिंकेज ड्यू टू द ड्राइंग श्रिंकेज और द ऑटोजीनियस श्रिंकेज और द प्लास्टिक श्रिंकेज तो शुरू में ही होता है। तो इन एडिशन टू दीज थ्री श्रिंकेजेस, दैट इज द प्लास्टिक, ड्राइंग and the autogeneous shrinkage, there is fourth shrinkage that occurs, that is due to the carbonation. और ये कार्बोनेशन श्रिंकेज कहां ज्यादा होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 एटमॉस्फेयर में। तो यहां जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां कार्बोनेशन श्रिंकेज होगा। और कहां है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा? जहां पोल्यूशन ज्यादा है।
तो ऐसा देखा गया है कि as the concrete becomes older and older, in addition to the other three shrinkages, the shrinkage is also due to carbonation. The rate of the shrinkage decreases rapidly with time, so that generally 14 to 34% of the, if we consider 20-year as the total shrinkage period, then 14 to 34% of the 20-year shrinkage occurs in 2 weeks. 40 to 80% of 20-year shrinkage occurs in 3 months, and almost 85% of the 20-year shrinkage occurs in 1 year. यानी बचा हुआ 15% ही श्रिंकेज ये बाद में 19 साल होते रहता है. And therefore the relative humidity of the air surrounding the concrete greatly affects the magnitude of the shrinkage that we have concluded. Second and the permanent important factor which affects the shrinkage is the water cement ratio. Because the shrinkage takes place due to the loss of the water. And if water cement ratio is in controlled condition, that is either it is 0.38, that is 38% weight of the cement, weight of the water by weight of the cement, then the shrinkage may be in a controlled manner. Actually, we should be as minimum water cement ratio 0.38 से भी कम रहना चाहिए, लेकिन ठीक है. लेकिन 0.38 से या 38% से ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो है तो कंक्रीट में नेचुरली, अभी मैंने आपको प्रोसेस तो समझा दिया श्रिंकेज कैसे होता है. मोर द वाटर मोर विल बी श्रिंकेज ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर. So therefore, more water cement ratio, more will be the shrinkage. Richness of the concrete has a significant influence on the shrinkage. Its quality clearly influences magnitude of the shrinkage, that is the water cement ratio. Higher the water cement ratio, larger is the shrinkage. Also, we can say that for a given aggregate content, shrinkage of concrete is a function of water cement ratio. यानी एग्रीगेट कंटेंट यदि कांस्टेंट है, फिक्स है, तो कंक्रीट हमने अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो से कंक्रीट बनाया और हमने उसका श्रिंकेज यदि मेजर किया तो हमें ऐसा दिखेगा कि वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो कंक्रीट ज्यादा श्रिंक होता है. अनदर फैक्टर विच पार्टली अफेक्ट्स टू द श्रिंकेज आर दी some parameters of the aggregate. Basically, aggregate on itself, aggregate being inert, it does not shrink. On the contrary, the aggregate opposes to the shrinkage. But the quantity of the aggregate, its size, and its modulus of elasticity of the aggregate, means whether the aggregate is a normal aggregate, heavyweight aggregate, or the lightweight aggregate, that affects the shrinkage, and the quantity and the size also. We have seen earlier. Lower the sizes of the aggregate, maximum size of aggregate, more will be shrinkage. Larger the size of the aggregate, lesser will be the shrinkage. And also the grading of the aggregate, that is well graded aggregate, lesser will be the shrinkage. प्रॉपर ग्रेडेड एग्रीगेट नहीं है. वेल ग्रेडिंग यानी क्या, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं. वेल ग्रेडेड एग्रीमेंट्स मींस ऑल साइजेस ऑफ द एग्रीगेट्स, so that in the larger aggregate smaller aggregate will be fixed, in the smaller aggregate again bit smaller aggregates are fixed, voids in those aggregates, and in this way this process will continue, and whatever remaining voids are there, it will be filled by the cement and the water paste. So there are very less chances or less use of the cement and water paste, and therefore the main cause of the shrinkage is the cement and the water paste. So therefore, optimum or minimum quantity of the cement water paste, lesser will be the shrinkage, and that will depend on the size and grading of the aggregate and also the water cement ratio.
Therefore, it has been found that the larger aggregates with the leaner mix means the less strength means जिसमें सीमेंट कम है उसको लीन मिक्स करके बोलते हैं, यानी कम स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट. जनरली हम लार्जर साइज ऑफ द एग्रीगेट यूज करते हैं जब हमें लीनर मिक्स या कम सीमेंट यूज वाला जो कंक्रीट है या जिसकी स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ हम तभी बढ़ती है जब हम स्मॉलर साइज और मीडियम साइज ऑफ एग्रीगेट वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करते हैं और ज्यादा सीमेंट यूज करते हैं, उसको रिचर मिक्स करके बोलते हैं. तो लार्जर एग्रीगेट एंड विद द यूज ऑफ द लीनर मिक्स एट द कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो रिजल्ट्स इन द लोअर श्रिंकेज, ऐसा देखा गया है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग एग्रीगेट कंटेंट फ्रॉम 71 to 74% will reduce the shrinkage by 20%. बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है. जैसे बताया मैंने, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट may not make any significant influence to some extent, but since it affects the quantum of the paste, grading of aggregate, तो क्योंकि एग्रीगेट itself it does not shrink, लेकिन वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है तो उसमें पेस्ट कम से कम यूज होगी, सीमेंट और वाटर पेस्ट, एंड देयरफॉर इट अफेक्ट्स द क्वांटम ऑफ द पेस्ट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो. देयरफॉर इट डेफिनेटली इन्फ्लुएंसेस द ड्राइंग श्रिंकेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली. वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो है वो जो हमने ड्राइंग श्रिंकेज देखा है वो ड्राइंग श्रिंकेज डेफिनेटली कम करता है. The aggregate particle restrain the shrinkage of the pest है ना. aggregate on itself it does not shrink. aggregate तो inert रहता है, hard रहता है. harder aggregate does not shrink in unison with the shrinkage of the pest. यानी aggregate और shrink का जो combination है unison बोलते हैं उसको, तो उसमें aggregate shrink नहीं होता, shrink तो सिर्फ pest होती है, whereby it results in higher shrinkage stresses. तो वो श्रिंक होने के कारण एग्रीगेट श्रिंक नहीं होता. सीमेंट एंड वाटर पेस्ट में श्रिंकेज के कारण टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है, बट दे आर वेरी लो मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर द इफ द वेल ग्रेडेड aggregates are there, very total shrinkage will be less. And also harder aggregates opposes the shrinkage, but opposite to the harder aggregate is softer aggregates or the lightweight aggregates are there. Then definitely those lighter or the soft aggregates cannot resist to the shrinkage or can support to the shrinkage. Therefore, the shrinkage will be bit more as compared to the harder aggregate. The type of aggregate, or strictly speaking its modulus of elasticity, influences the shrinkage of concrete. As we have discussed, lightweight concrete exhibits a higher shrinkage than concrete made with normal weight or heavyweight aggregate. Okay, we have described or we have classified the aggregates into three types: the lightweight aggregate, the normal weight aggregate and the heavyweight aggregate. है ना. 1000 से 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जिसकी डेंसिटी है उसको लाइट वेट एग्रीगेट बोलते हैं, आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए यूज करते हैं. जो एग्रीगेट जो अबाउट 2000 to 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जिसकी डेंसिटी है उसको हम नॉर्मल वेट बोलते हैं, एंड मोर देन 2800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जिसकी डेंसिटी है उसको हम हेवी वेट एग्रीगेट करके बोलते हैं. तो नॉर्मल वेट एग्रीगेट में श्रिंकेज कम होता है एज कंपेयर टू द लाइट वेट एग्रीगेट. लाइट वेट एग्रीगेट में क्योंकि वो लाइट वेट है, हल्का है, उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू नॉर्मल वेट ज्यादा है, तो उसके कारण उसका श्रिंकेज होता है. The lower shrinkage of the large members is due to the fact that only the outer part of the concrete is drying and its shrinkage is restrained by the non-shrinking core. बहुत लार्ज मेंबर या मास कंक्रीट जहां पे होता है तो उसमें थोड़ा श्रिंकेज कम दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस जो है वहां की ही आउटर पार्ट ऑफ द कंक्रीट सर्फ जो है मेंबर
वही एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में या कांटेक्ट में आता है, तो उसके कारण उसमें का पानी इवेपोरेट होता है, तो वही श्रिंक होता है, ना कि अंदर का कंक्रीट, क्योंकि उसमें का पानी लॉस नहीं होता, वो सिर्फ हाइड्रेशन में ही लॉस होता है। तो इसलिए लार्जर मेंबर्स शो lesser shrinkage. In practice then we have differential or restrained shrinkage. तो इसलिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कंक्रीट के जो लार्जर मेंबर है, बहुत बड़े बड़े डैम के सेक्शन है, पियर के सेक्शन है, एबटमेंट के सेक्शन है, तो उसमें बाहर के आउटर पार्ट में श्रिंकेज है, अंदर के पार्ट में कम श्रिंकेज है, तो उसको डिफरेंशियल और रिस्ट्रेंट श्रिंकेज करके बोलते हैं। उसके कारण थोड़ा सा एक आधा प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है फिर से, कि माइक्रो हेयर क्रैक फॉर्म हो सकते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस नो टेस्ट मेजर्स ट्रू सिंकेज एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, so that specimen size should always be reported. Now friends, we are moving into the next part, that is the carbonation shrinkage. Again another type of the shrinkage. What is carbonation then? Very important concept and the term. I have tried to show the carbonation effect in the photograph in the slide. Okay, 2-3 slides will have the same photograph. What is carbonation then? Carbonation means the reaction of the carbon dioxide present in the atmosphere. हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, बाकी गैसेस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा रहता है। ये जब हाइड्रेटेड सीमेंट यानी CSH जेल के साथ जब रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, then this carbon dioxide converts this CSH gel or the calcium oxide into the cement into calcium carbonate. About 0.03% by volume in rural air. कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है? 0.03% ऑफ द टोटल एयर। इस ये रूरल एयर यानी खेड़े गांव की जो है उसमें 0.03 से भी कम रहता है। 0.1% और इवन मोर इन अनवेंटिलेटेड लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जहां वेंटिलेशन नहीं है वहां इतना रहता है। और 0.3% से ज्यादा या मिनिमम 0.3% ये बड़े शहरों में रहता है। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रहता है बड़े शहरों में ज्यादा? बिकॉज द व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द hydrated cement, that is the CSH gel, which results into formation of the calcium carbonate. As can and where will this occur? कहां होगा ये? कि कंक्रीट का जो सरफेस, कंक्रीट का जो मेंबर है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं है, उसको होगा क्या इफेक्ट? उसको नहीं होगा। ये उसको ही होगा कि जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। अब ये कार्बोनेशन के कारण क्या होता है कि ये CSH जेल जो एक्चुअली हार्ड और जो कंक्रीट को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देती है सेट होने के साथ में, ये कन्वर्ट होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो CaOH ट्वाइस में और ये बाद में CO2 के बाद में होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट इज वेरी ब्रिटल। दिस कैल्शियम कार्बोनेट डज नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ। ये बहुत ब्रिटल है, एज ब्रिटल एज दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन ये हार्ड होते जाता है। यानी कंक्रीट की जैसी स्ट्रेंथ है, सीमेंट CSH जेल की जैसी स्ट्रेंथ है, वैसी उससे कम स्ट्रेंथ है, CaOH ट्वाइस से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये है तो ब्रिटल और इसको श्रिंकेज कम है एज कंपेयर टू अदर श्रिंकेज। श्रिंकेज इससे जरूर होता है, इसलिए तो उसको कार्बोनेशन श्रिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा जो फॉर्म होता है ड्यू टू दी कार्बोनेशन ऑफ द कैल्शियम
CSH gel or COH twice in the cement with the help of the carbon dioxide in the atmosphere is called as the carbonation. The result of the process of carbonation is contraction of the concrete known as carbonation shrinkage. The carbonation proceeds from the surface of the concrete towards inwards और inwards यानी concrete के surface से अंदर अंदर धीरे धीरे जाता है, but does so extremely slowly. ये process बहुत slow होती है. The actual rate of carbonation depends on permeability of concrete. तो ये कार्बोनेशन काय के ऊपर डिपेंड है? कंक्रीट के परमिएबिलिटी के ऊपर में. और कंक्रीट की परमिएबिलिटी काय के ऊपर में डिपेंड है? आप सबको मालूम है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वेल ग्रेडेड और नॉन ग्रेडेड एग्रीगेट, प्रॉपर कॉम्पैक्शन, कवर एक्सेट्रा. ऑल दीज थिंग्स affects the permeability or the percolation of the water into the concrete. तो ये कार्बोनेशन नेचुरली इसमें परमिएबल कंक्रीट होगा तो ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा. एंड इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर then H2CO3 or carbonic acid is formed and this carbonic acid reacts with the CSH gel or the CSH hydrated cement. Its moisture content, so the carbonation depends on the permeability of concrete, its moisture content, concrete में का moisture content, as well as the carbon dioxide content and the relative humidity of the ambient यानी atmospheric medium. So therefore the permeability is controlled by the water cement ratio and the effectiveness of the curing. देखो इसलिए कितना इंपॉर्टेंस है फिर से वाटर सीमेंट रेशियो और क्यूरिंग को. हायर वाटर सीमेंट रेशियो, ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो एंड इनएडिक्वेटली क्यूर्ड, इम्प्रॉपरली क्यूरिंग हुआ है, क्यूरिंग अच्छा नहीं हुआ है, विल प्रोन टू कार्बोनेशन, उसके कारण कार्बोनेशन ज्यादा होगा. एंड देयर विल बी ग्रेटर डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन. मोर द कार्बोनेशन, मोर विल बी द श्रिंकेज एंड ऑल्सो द ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट विल रिड्यूस. और ये ऐसा कंक्रीट छोड़ता है धीरे धीरे कार्बोनेशन के कारण, ये अंदर का रिइंफोर्समेंट एक्सपोज हो जाता है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. दीज आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द कार्बोनेशन. और जैसा रिइंफोर्समेंट एक्सपोज होता है फिर से रिइंफोर्समेंट कम इन कांटेक्ट विद द वाटर एंड द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एंड रस्टिंग or corrosion of the reinforcement starts and deterioration of the concrete slowly takes place. The extent of carbonation can easily be determined by treating a freshly broken surface with phenolphthalein. कार्बोनेशन कितना हुआ है ये कंक्रीट में यदि गिनना है तो जो कंक्रीट का ऐसा जो आउटर सरफेस है ये फिनोप्थिलीन के साथ में केमिकल रिएक्शन कीजिए. द फ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कलर्ड पिंक while the carbonated portion is uncolored. यदि फिनोप्थिलीन के साथ में इसको फिनोप्थिलीन इसके ऊपर में डाला हमने जो कंक्रीट का सरफेस थोड़ा सा फोड़ के, तो उसमें से कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पिंक कलर में होगा, लेकिन जो कार्बोनेटेड कैल्शियम कार्बोनेट है वो अनकलर्ड रहेगा. तो हमें ध्यान में आएगा कि कितना डेप्थ अनकलर्ड है. So carbonation of the concrete may be made up of the ordinary Portland cement, results in slightly increased strength. है ना, थोड़ा सा as compared to calcium hydroxide, it increases bit strength, but reduces the and also reduces the permeability. It increases bit, not the strength of the CSH gel. थोड़ी सी हार्डनेस करता है, ये बढ़ाता है, लेकिन ये permeability कम करता है. Because water which is released by the decomposition of the calcium hydroxide on carbonation aids the process of hydration and calcium carbonate is deposited in the voids within the cement paste. ये कार्बोनेशन के कारण कैसे क्रैक्स वगैरह ऐसे, ये क्या होता है कार्बोनेशन में कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ है
ये फिर से कंक्रीट के अंदर जो वाइड्स है या क्रैक्स है उसमें जमा हो जाता है, और इस प्रोसेस में जो वाटर रिलीज होता है H2O, वो वाटर भी अंदर के CSH जेल के हाइड्रेशन को मदद करता है, तो उसके कारण क्रैक्स फील हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, और हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट आल्सो कंटिन्यूज, रिजल्ट्स इन द रिड्यूसिंग द permeability and bit increase in the strength of the concrete at the surface of the concrete which is exposed to atmosphere or carbonation. However, carbonation neutralizes the alkaline nature of the hydrated cement paste and thus protection of the steel from the corrosion is affected. कार्बोनेशन के डिसएडवांटेजेस श्रिंकेज तो है, लेकिन कार्बोनेशन के कुछ फायदे ऐसे हैं कि उससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे कंक्रीट की इम्परमिएबिलिटी बढ़ती है, परमिएबिलिटी कम होती है, और वो इम्परमिएबिलिटी बढ़ी, परमिएबिलिटी कम हो गई, तो उसके कारण अंदर का स्टील जो है वो करोजन होने से बचता है. लेकिन consequently, if full depth of the cover to the reinforcement is carbonated and moisture and oxygen can ingress, corrosion of the steel and possibly cracking will occur. Result, यदि अनफॉर्चुनेटली जो ये जैसा अंदर में रीइंफोर्समेंट है और ये बाहर का पोर्शन है कंक्रीट का एक्सपोज्ड है, इसके बीच में का पोर्शन यदि कार्बोनेशन पूरा हो गया, जिसको हम कवर टू द रीइंफोर्समेंट करके बोलते हैं, और यदि गलती से इसमें से मॉइस्चर और पानी और ऑक्सीजन अंदर में आ गया क्रैक में से, तो दिस विल रिजल्ट इन द करोजन of the reinforcement in the concrete and will possibly result in formation or increasing the cracks. So carbonation increases the shrinkage at the intermediate humidities, but not at 100 or 100% to 25%. यानी एक नॉर्मल ह्यूमिडिटी में श्रिंकेज होता है ड्यू टू द कार्बोनेशन, लेकिन बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रही तो कार्बोनेशन कम होता है. यदि ज्यादा ह्यूमिडिटी रही तो as there is insufficient water in the pores within the cement paste for the CO2 to form carbonic acid. On the other hand, when the pores are full of the water, the diffusion of the CO2 into paste is very low, very slow. The practical consequence of this is that carbonation is greater in concrete, protected from direct rain, but exposed to moisture air than in concrete periodically washed down by the rain. जहां पे ड्राई कंक्रीट है, सूखा कंक्रीट है, नॉट एक्सपोज टू वाटर, then there is more chances of the carbonation as compared to the moist air or the humid atmosphere exposed concrete, or if that concrete is washed away periodically by the rains. That is in short regarding the effect of the water in the carbonation shrinkage. Now the effects of the shrinkage, regarding effects of the shrinkage, we will discuss in our next lecture. We will take the break here.